کے علاقے لانڈھی میں ضمنی انتخاب کے آخری گھنٹے میں 2 سیاسی جماعتوں کے درمیان مسلح تصادم، علاقہ میدان جنگ بن گیا۔ فائرنگ سے ایک شخص جاں 4 زخمی، حالات کشیدہ، دکانیں بند ہو گئیں۔ فائرنگ سے پی ایس پی کے انیس قائم خانی کی گاڑی پر گولیاں لگیں، جی ایل پی کی گاڑی پر بھی فائرنگ ہوئی۔ متحدہ نے اپنے 10 سے زیادہ کارکن زخمی ہونے کا الزام لگایا۔ فائرنگ کی زد میں 2 راہگیر اور ریسکیو ادارے کی ایمبولینس بھی آ گئی۔ ہنگامہ آرائی کے باعث بعض پولنگ اسٹیشن جس سے حملہ فرار ہو گیا، وہاں نامعلوم افراد نے بیلٹ باکس توڑ دیے۔ صورتحال پر وزیر اعلیٰ سندھ اور صوبائی الیکشن کمیشن کا نوٹس۔ وزیر اطلاعات شرجیل میمن نے کہا کہ NA 240 بڑا حلقہ ہے، جہاں پولیس نہیں تھی وہاں فائرنگ ہوئی۔ صوبائی الیکشن کمیشن کی ہدایت پر ووٹوں کی گنتی کے وقت پولنگ اسٹیشن پر پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری تعینات۔ حملہ کر کے گئے، ہم کہیں سے گزر بھی نہیں رہے تھے، کوئی ٹکراؤ بھی نہیں ہوا، باقاعدہ آ کر ججوں کے ساتھ اس کراچی میں ہماری وجہ سے آج یہ دندناتے پھر رہے ہیں 6 سالوں سے، جو ہمارے یا تو بھائی ریاست ان کو گرفتار کرے، میرے ساتھیوں کے قاتلوں کو گرفتار کرے، ان کو سزا دے، یا پھر ہمیں ہتھیار دیں۔ آئی جی سندھ کی پولیس یہاں پر کچھ بھی نہیں کر رہی، آئی جی کی پولیس یہاں کچھ بھی نہیں کر رہی۔ سب کو معلوم ہے کہ فائرنگ کرنا، پولنگ رکوانا، یہ عمل کون کرتا ہے؟ جسے پتا ہو کہ ہماری جو ہے وہ شکست یقینی ہے۔ اور افسوس تو اس بات کا ہے مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی خود موجود رہ کر یہ اپنی جو ہے سپرویژن میں یہ ساری چیزیں کروا رہے ہیں۔ 3 بجے کے بعد ایک مخصوص سیاسی پارٹی نے کوئی عمل شروع کیا جو کراچی کے مختلف علاقوں میں ماضی میں کرتے چلے آ رہے ہیں کہ مختلف پولنگ اسٹیشنوں پر حملہ آور ہوئے، ہمارے پولنگ کیمپ پر حملہ آور ہوئے، ہمارے پولنگ ایجنٹوں کو مارا۔ ان کے ایک ہی مقصد تھا، مقصد کیا تھا کہ پولنگ عمل کو رکوایا جائے، وہ کمال اور جمال کی پارٹی کی ضمانت ضبط کی چل جائے گی۔ تو آج وہ ایک پولیٹیکل اسٹینڈ حاصل کرنے کے لیے وہ کیا کرا، انہوں نے کہا کہ ہماری گاڑی پہ فائرنگ کی گئی، وہ ایک پبلسٹی حاصل کرنا چاہتے تھے۔ کراچی کے حلقہ NA 240 میں پرتشدد واقعات، سیاسی جماعتوں کے ایک دوسرے پر الزامات۔ چیئرمین PSP مصطفیٰ کمال نے کہا کہ TLP نے فائرنگ کر کے کارکنوں کو زخمی کیا، ہم نے کسی کو پتھر بھی نہیں مارا۔ ریاست فائرنگ کرنے والوں کو گرفتار کرے یا ہمیں اسلحہ دے۔ TLP کے مفتی غلام غوث بغدادی کا بھی کارکنوں کے زخمی ہونے کا دعویٰ، کہا فائرنگ وہ کرتے ہیں جنہیں شکست نظر آ رہی ہو۔ افسوس سارا تشدد مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی کی نگرانی میں ہوا۔ وفاقی وزیر اور رہنما MKM پاکستان امین الحق بولے 3 بجے کے بعد مخصوص پارٹی نے وہی عمل شروع کیا جو ماضی میں کراچی میں ہوتا آ رہا ہے۔ ہمارے پولنگ ایجنٹس پر حملہ کیا گیا، مقصد انتخابی عمل رکوانا تھا۔ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سیاسی معاملہ ہے، DGISPR کو اس میں بولنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو میں ان قوم سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں، فتنہ خان سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اگر یہ سیاسی معاملہ تھا تو نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل میں بطور وزیر اعظم اس کو کیوں لے کر گئے؟ نیشنل سیکیورٹی جو کمیٹی ہے وہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی، نیشنل سیاسی کمیٹی نہیں ہے۔ DGISPR نے کل جو بات کی ہے وہ DGISPR نے بطور انڈیویجول کے نہیں کی، وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیز کو۔ انہوں نے جو بات کی کہ سازش نہیں ہوئی تو وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں اس نیشنل سیکیورٹی ایجنسیز کو جن کے پاس فیکٹس ہوتے ہیں، جن کی ذمہ داری ہے پاکستان کی سیکیورٹی۔ وہ اپنے پاس سے کوئی سیاسی بات نہیں کر رہے، وہ فیکٹس پہ بیس بات کر رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے رہنما مریم نواز کے تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان پر وار، کہا عمران خان نے اپنی سیاست چمکانے کے لیے سیکیورٹی اداروں کو داؤ پر لگا دیا۔ عمران خان اب کہہ رہے ہیں کہ یہ سیاسی معاملہ ہے، DGISPR کو بولنے کی ضرورت نہیں، DGISPR کے پاس حقائق ہیں، وہ اپنے پاس سے بات نہیں کر رہے۔ اگر یہ سیاسی معاملہ تھا تو عمران خان نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں کیوں لے کر گئے؟ اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ پرویز مشرف سے متعلق نواز شریف کا بیان انسانی بنیادوں پر تھا، ووٹ کو عزت دو آج بھی ان کا بیانیہ ہے اور کل بھی رہے گا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں پر مریم نے کہا کہ عمران خان کا خیال تھا کہ نہ کھیلوں گا نہ اگلی حکومت کو کچھ کرنے دوں گا، جو قیمتیں وہ سیٹ کر کے گئے تھے اس حساب سے پیٹرول آج 300 روپے فی لیٹر ہونا چاہیے تھا۔ حکومت نے اپنی طرف سے 1 روپیہ بھی پیٹرول ڈیزل پر نہیں بڑھایا۔
मजबूरी में पेट्रोल की कीमत बढ़ाने का फैसला करना पड़ा। मईशत खंडरात की हालत में मिली। 4 साल की बुराई कदम कदम पर हमारे सामने रुकावट बनी हुई है। IMF की शराइत PTI हुकूमत ने तय की। शराइत को पूरा करने के अलावा कोई चारा नहीं था। विफाकी वुज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ख्वाजा आसिफ ने उम्मीद दिलाई यूक्रेन रूस जंग बंद होने से तेल की कीमतें गिरेंगी। वो वक्त जरूर आएगा जब महंगाई भी रिवर्स होगी। ये अपील भी की कि कारोबार जल्द बंद करने से मुल्क में 4000 मेगावाट बिजली की बचत हो सकती है। कमर जमान कायरा का कहना है कि भारी सब्सिडी की मद में खजाने से बड़ी रकम निकल रही थी। वज़ीर आज़म ने अपने फ्यूल में 40% कमी कर दी। सरकारी मुलाजिमीन का फ्यूल भी कम किया गया है। मुस्तदिक मलिक ने कहा कि एक महीना अगर हम कीमत ना बढ़ाते तो सरकारी खजाने पर 100 अरब से 120 अरब माहाना का बोझ था। ₹3 पेट्रोल की कीमत बढ़ के 235 रुपए 79 पैसे हो जाएगी। हमें पता है कि इससे महंगाई भी होगी, हमें पता है कि इससे लोगों को तकलीफ भी होगी, लेकिन हम मजबूर थे। गरीब बंदा जो है वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा। जिन्हें हुकूमत ने मुआहदे सारे गलत किए मुल्क को बर्बाद करने वास्ते 235 में चला गया। गरीब बंदा किधर से पैसे लाए? पहले 150 का पेट्रोल डालते हैं, अभी 500 का डाले, वो भी पूरा नहीं करते। पेट्रोल की एक और लंबी छलांग, आवाम परेशान। 1 लीटर पेट्रोल 24 रुपए 3 पैसे इजाफे के बाद 233 रुपए 89 पैसे का हो गया। डीजल 263 रुपए 31 पैसे फी लीटर हो गया। मिट्टी का तेल 29 रुपए 49 पैसे इजाफे के साथ 211 रुपए 43 पैसे हो गया। लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 29 रुपए 16 पैसे इजाफा। नई कीमत 207 रुपए 47 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी खत्म। 21 रोज में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तीसरी बार इजाफे पर आवाम बिलबिला उठे। महंगाई की नई लहर का खौफ खाने लगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि ईंधन की कीमतों में इजाफे के असर से आगाह हैं। हुकूमत के पास IMF के मुआहदे की वजह से कीमतें बढ़ाने के अलावा कोई चारा नहीं था। IMF मुआहदे पर PTI हुकूमत ने दस्तखत किए थे। मुआहदे की तफसीलात पर वो जल्द कौम को एतमाद मिलेंगे। मुआशी मुश्किलात से जल्द निकलेंगे। कहाँ पर खोए हुए हैं, किस बिल में छुपे हुए हैं? ये आए आवाम का सामना करें, आए पार्लियामेंट का सामना करें। ये इजाफा नामंजूर है। यहाँ बुलाए, यहाँ पर IMF के नुमाइंदे को बुलाए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों और वजीर खजाना के ऐवान में न आने पर अपोजिशन का सेनेट में एहतजाज। अपोजिशन लीडर शहजाद वसीम ने वजीर खजाना को IMF का नुमाइंदा करार दे दिया। कहा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मंजूर नहीं। वजीर खजाना के ऐवान में आने तक बजट कार्रवाई में हिस्सा न लेने का ऐलान। तहरीक इंसाफ का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने पर सख्त रद्द-ए-अमल। असद उमर ने कहा कि हुकूमत डाकुओं की तरह रात की तारीकी में आवाम की जेब पर डाका डालती है। हम्माद अजहर ने कहा कि रूस ने दुनिया के दर्जनों आजाद ममालिक को सस्ता तेल बेचा, हम यहाँ भिखारियों के वेंटिलेटर पर जा पड़े। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI ममनुआ फंडिंग केस का फैसला 1 माह में करने का सिंगल बेंच का फैसला कलअदम करार दे दिया। तहरीरी फैसला जारी। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस बाबर सत्तार ने फैसले में कहा कि इलेक्शन कमीशन पर शक की गुंजाइश नहीं। इलेक्शन कमीशन बाकी जमातों के खिलाफ कार्रवाई भी मुनासिब वक्त में मुकम्मल करेगा। इलेक्शन कमीशन ने यकीन दिलाया कि सियासी जमातों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई होगी। ये मुनासिब नहीं होगा कि अदालत गैर मुसद्दका खदशात पर कमीशन को हिदायत दे। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने स्पीकर पंजाब असेंबली को निशाने पर ले लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि डिप्टी स्पीकर पर जानलेवा हमला हुआ। जो कस्टोडियन बना बैठा था वो शाबाशी दे रहा था। कौन सी दवाई थी कि 70 साल के आदमी का टूटा हुआ बाजू एक दिन में ठीक हो गया। कहा गया कि IG और चीफ सेक्रेटरी को पेश किया जाए, फिर बजट का सोचा जाएगा। आइन में कहाँ लिखा है IG और चीफ सेक्रेटरी को पेश करोगे तो बजट पेश होगा। कहते हैं इजलास ऐवान इकबाल ने क्यों बुलाया। नामसाद हालात में हमने तमाम आईनी और कानूनी ऑप्शंस देखे। आप अपनी मराद के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा रहे हैं। अवाम का क्या कसूर था। साबिक वफाकी वज़ीर मोनिस इलाही मनी लॉन्ड्रिंग केस में FIA लाहौर के दफ्तर में पेश। FIA की 3 रुकनी तहकीकाती टीम ने मोनिस इलाही से तफ्तीश की। 40 सवालों पर मुश्तमिल सवालनामा दे दिया गया।
पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में मोनिस इलाही ने वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का दावा मुस्तरद कर दिया। कहा पीटीआई ने नहीं 2 दिन पहले दर्ज FIR पर कार्रवाई की गई। तकलीफ ये है कि इनका साथ क्यों न दिया। लाहौर की अदालत ने केस में गिरफ्तार शरीक मुल्जिमान नवाज भट्टी और मजहर अब्बास का 4 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। एक और मुल्जिम वाजिद भट्टी ने 22 जून तक अबूरी जमानत हासिल कर ली। तहरीक इंसाफ की रहनुमा श्री मजारे की गिरफ्तारी की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमीशन तश्कील नोटिफिकेशन इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पेश कर दिया गया। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि जब उनकी हुकूमत थी उस वक्त भी मेंबरान असम्बली को खुशी खुशी अंदर कर देते थे। अली वजीर अभी भी जेल में है, वो भी मेंबर कौमी असम्बली है। इस अदालत की हदूद में सहाफियों को भी उठाया। क्या इनकी आज तक तहकीकात हुई? अदालती हिदायत पर तश्कील दिया गया कमीशन श्री मजारे की गिरफ्तारी में इख्तियारात के गलत इस्तेमाल के इल्जाम का जायजा लेगा। 4 जुलाई तक अपनी सिफारिशात वफाकी काबीना को भेजेगा। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने मौजूदा सूरत हाल पर तहरीक इंसाफ को मुबाहिसा का चैलेंज दे दिया। कहा कि यूक्रेन जंग की वजह से आलमी सतह पर पेट्रोलियम महंगा हुआ, मुल्क को मुस्तहकम करने के लिए मुश्किल फैसला किया, अपनी सियासत को कुर्बान किया, पाकिस्तान को बचाना जरूरी था। इमरान खान इंतशार की सियासत कर रहे हैं। उम्मीद है तहरीक इंसाफ अपनी नाकामियों का जिम्मेदार हुकूमत और फौज को करार देने की बजाय मुस्बत रवैया इख्तियार करेगी। बिजली की बचत के लिए पावर डिवीजन के बड़े फैसले। मुल्क भर के कमर्शियल फीडर्स शाम 7 से रात 10 बजे तक बंद होंगे। कमर्शियल फीडर्स की बंदिश से 5000 मेगावाट बिजली की बचत होगी। कमर्शियल फीडर्स पर दिन में लोड शेडिंग नहीं होगी। शाम 7 से रात 11 बजे तक ट्यूबवेल के फीडर्स को भी बिजली बंद रखने का फैसला। इससे 3000 मेगावाट बिजली बचेगी। पावर डिवीजन ने अपनी तजवीज़ की समरी तैयार कर ली। इसी हफ्ते वज़ीर आज़म और काबीना से मंजूरी ली जाएगी। गरीब तरीन पाकिस्तानी जो बिस्क में हैं उनको तो हमने 2000 रुपए एक्स्ट्रा जून में दे दिए। 60 लाख और पाकिस्तानी जो नेक्स्ट गरीब तरीन है वो भी एलिजिबल है। वो हमको मैसेज भेजें अगर 786 पे तो उनको भी 2000 रुपए जून में मिलेगा। पेट्रोल की कीमत बर्दाश्त न करने वाले गरीब अफराद 786 पर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर भेजें। उनका रिकॉर्ड चेक करके उन्हें भी माहाना 2000 रुपए दिए जाएंगे। वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल का ऐलान। कहा मुश्किल फैसले किए और कर रहे हैं। आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमतें $120 फी बैरल हैं। हम पेट्रोल की कीमत में 24 रुपए फी लीटर नुकसान कर रहे हैं। इमरान खान ने IMF से मुआहदे की खिलाफ वर्जी की, जानबूझकर पेट्रोल कीमतें कम की थी। इन्होंने जो मुआहदे किए उनकी वजह से हमारे हाथ जकड़े हुए हैं। पिछली हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत पर न सिर्फ सब्सिडी खत्म करने बल्कि उस पर लेवी और सेल्स टैक्स लगाने का वादा भी कर चुकी। IMF से मुआहदे में इसका तस्करा भी मौजूद है। वज़ीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक कहते हैं कि पेट्रोल की कीमत में इजाफा करना नागुज़ीर था। चंद माह मुश्किलात के बाद बेहतरी आ जाएगी। मुत्तहिदा अरब अमारात में पेट्रोल की फी लीटर कीमत $1 से ज्यादा है। डीजल की कीमत उससे भी ज्यादा है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि पेट्रोल की कीमत बढ़ने से 30% महंगाई बढ़ेगी, गरीब पिस जाएगा। इन हालात में तनख्वाहदार तबका कैसे गुजारा करेगा? इस्लामाबाद हाईकोर्ट बाद में वकला से खिताब करते हुए कहा कि हमारी हुकूमत के पहले 2 साल बहुत मुश्किल थे। दोस्त मुल्क मदद नहीं करते तो पाकिस्तान का दिवालिया निकल जाता। 7 मार्च को पाकिस्तान के सफीर को कहा गया कि इमरान खान रूस क्यों गया? अमरीकी सिफारतखाना लोगों को बुला बुलाकर मीटिंग कर रहा था। पाकिस्तानी कौम स्टैंड नहीं लेगी तो कोई वजीर आजम आजाद पॉलिसी नहीं चला पाएगा। तरीके से रुपए की कदर में कमी आ रही है, उसका मंफी असर होता है, अशिया महंगी होती है। आप समझते हैं जो रिजर्व पोजीशन हमारी बेहतर हुई है उसके बावजूद IMF का प्रोग्राम कंप्लीट करना जरूरी है? पाकिस्तान मैं समझता हूँ जरूरी है। हमने वैसे भी जो बहुत सारे मेजर्स लेने हैं वो हम IMF के प्रोग्राम में ना भी हो तो हमें लेने पड़ेंगे। ये कई चीजें तो मजबूरी में हमें करनी पड़ रही है। देखो जी, एट द एंड ऑफ द डे अगर हम उठा के ये जो लगा रहे हैं, ये जो पेट्रोलियम लेवी, तो ये तो इसलिए लगा रहे हैं कि वो हमें कह रहे हैं, वरना मैंने तो उठा के अपना सेल्स टैक्स ही 0 कर दिया था। मजबूरी है। उन्होंने कहा कि आपने बजट किया था 600
500 अरब, और अभी आपने कुछ भी नहीं इकट्ठा किया, तो अभी तो कुछ ना कुछ तो करें ना, 300 तो करें। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने IMF से मुआहदे में पेट्रोलियम मसनूआत पर न सिर्फ सब्सिडी खत्म करने का वादा किया, बल्कि ये भी कहा कि वो आवाम से पेट्रोल पर लेवी भी वसूल करेंगे और सेल्स टैक्स भी। इमरान हुकूमत ने पिछले बजट में ऐलान भी किया था कि पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की मद में अरबों रुपए की रकम वसूल की जाएगी। तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने का दिफा भी करते रहे। रुपए के मुकाबले में डॉलर की ऊंची उड़ान न रुकी। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.21 महंगा होकर ₹207.67 का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर ₹1.51 महंगा होकर ₹209.50 का हो गया। जून के 16 दिनों में इंटरबैंक में डॉलर की कदर ₹9.21 बढ़ी। नामवर बिजनेसमैन मलिक रियाज की फैमिली ने हुकूमत पाकिस्तान, बरतानवी नेशनल क्राइम एजेंसी और उनके दरमियान हुए खुफिया मुआहदे की तफसीलात जारी करने के हुकूमत पाकिस्तान के फैसले पर दुख का इजहार किया है। बरतानवी लॉ फर्म किंग्सली नेत्र ने मलिक रियाज की फैमिली की तरफ से बयान में कहा कि उन्हें दुख हुआ कि हुकूमत पाकिस्तान ने इस वादे की खिलाफ वर्जी की जो उसने NCA और मलिक रियाज फैमिली के साथ किया था। मलिक रियाज हुसैन की फैमिली वादे करती है कि दीवानी कार्रवाई के नतीजे में तय पाने वाला मुआहदा अवाम के मफाद में खुफिया रखने का फैसला किया गया। NCA और हुकूमत पाकिस्तान ने इसकी मंजूरी दी थी। मुआहदे के नामुनासिब होने का भी कोई तासुर गलत है। ऐसा होता तो NCA उस पर इत्तेफाक न करता। पाकिस्तान के जंगलात में पे दर पे आग लगने के वाक़यात। अब ये इलाका वीरान हो गया है। खुश्क साली या टिम्बर माफिया का हाथ। जंगलात को कोई कस्बन जला रही है। वजह क्या है? हुकूमत का ये दावा है कि गर्मी की वजह से लगा है। पाकिस्तान के जंगलात में पे दर पे आग लगने के वाक़यात, इसकी वजह क्या है? खुश्क साली, आलमी हिद्दत में इजाफा, मुजमाना गफलत या लालच का अंधा खेल, तकरीब कारी या लकड़ी माफिया का हाथ। क्या पाकिस्तान के जंगलात यूं ही जलते रहेंगे? हुकूमत की हिकमत अमली क्या है? जियो न्यूज की खुसूसी नशरियात वफाकी वजीर माहौलियाती तब्दीली शरी रहमान ने कहा कि जानबूझकर आग लगाने वाले को सजाएं मिलनी चाहिए। आग लगने की एक वजह दर्जा हरारत में इजाफा भी है। जंगलात में आग की रोकथाम के लिए टास्क फोर्स सूबों के साथ ताउन कर रही है। इवन फील्ड रेफरेंस में सजाओं के खिलाफ मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर की अपीलों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। मरियम नवाज के वकील अमजद परवेज ने कहा कि कैलिब्री फॉन्ट की वजह से 6 साल से उनकी मौके की किरदार कुशी की गई। कैलिब्री फॉन्ट 2005 में था तो कोई और कैसे इस्तेमाल नहीं कर सकता था। जिस केस पर सजा हुई वो ट्रस्ट डीड जून 2006 का है। नैब के मुताबिक वकवा 1993 का है और मरियम नवाज की ट्रस्ट डीड 2006 की है। 1993 के जुर्म में आनत और 2006 में कैसे की जा सकती है? जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि आप ट्रस्ट डीड के साथ खड़े हैं, आप इस दस्तावेज पर जाकर बारे सबूत खुद पर ले रहे हैं। अमजद परवेज ने कहा कि इसी दस्तावेज से दिखाऊंगा कि नैब बारे सबूत मुंतकिल करने में नाकाम रहा। केस की मजीद समाअत 23 जून तक मुलतवी। मरियम नवाज के वकील आइंदा समाअत पर भी दलाइल जारी रखेंगे। हाईकोर्ट में हमजा शहबाज की हल्फबर्दारी के लिए स्पीकर कौमी असेंबली को नामजद करके खिलाफ अपीलों पर समाअत। तहरीक इंसाफ के वकील इंचार्ज रशीद सिद्दीकी ने कहा कि गवर्नर ने इंतखाब में बेज़ाब्तगियों की निशानदेही की। साबिक एडवोकेट जनरल अहमद अवैस ने बताया कि गैर मामूली सूरत हाल में गवर्नर को मशवरा दिया और आईनी पोजीशन बताई। बेंच ने रिमार्क्स दिए कि बज़ाहिर एक खत से बहरान शुरू हुआ। हमजा शहबाज के वकील ने कहा कि गवर्नर मुंतखब वज़ीर आला को हल्फ के लिए बुलाने का पाबंद है। अगर गवर्नर की राय में इलेक्शन ठीक नहीं हुआ तब भी वो हल्फ लेगा, तमाम फिर वो एतमाद का वोट लेने का कह सकता है। समाअत 28 जून तक मुलतवी। ऐवान इकबाल में पंजाब असम्बली के बजट इजलास की सदारत पर डेप्यूटी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी की नाअहली का रेफरेंस स्पीकर पंजाब असम्बली को भेज दिया गया। रेफरेंस PTI के अरकान असम्बली शुजात नवाज और मोहम्मद रिजवान ने दायर किया। रेफरेंस की कॉपी इलेक्शन कमीशन को भी भेजी गई है।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सक्खर हैदराबाद मोटरवे मंसूबा जल्द शुरू करने की हिदायत। चारराहों की तामीराती इजलास से पेशरफ्त इजलास में कहा कि गुज़श्ता 4 सालों में तरक्की का सफर मुजरमाना गफलत के बायस रोका गया। मुतल्लिका इदारों की जिम्मेदारी है कि मुल्क कौम का वक्त पैसा बचाने की हर मुमकिन कोशिश करें। वज़ीर आज़म के मंसूबों के लिए कॉन्ट्रैक्ट का अमल शफाफ बनाने की हिदायत। प्रोक्योरमेंट का तरीक़ाकार बेहतर बनाने के लिए कमेटी बनाने की मंजूरी दे दी। शेख रशीद ने कहा है कि हुकूमत ने पेट्रोल पर 24 और डीजल पर 60 रुपए बढ़ाकर गरीब को 2 हफ्तों में तीसरा तोहफा दिया है। हुकूमत अपने केसेस खत्म और मुखालिफिन पर दहशतगर्दी के झूठे केसेस बना रही है। सारी कौम की नजरें अब सुप्रीम कोर्ट पर है। अगर फैसला सड़कों पर होना है तो फैसला 45 दिनों में कुछ भी हो सकता है। नून की जगह शीन को लाना मास्टर प्लान था। नून लीग सिर्फ टीवी शो के लिए है। 24 मुल्कों के सर्वे में वतन से मोहब्बत में पाकिस्तानी सबसे आगे। वतन से जुड़े रहने के लिए तैयार, वतन पर मर मिटने को तैयार। अच्छे मौके मिलने के बावजूद वतन से बाहर न जाने पर इसरार। गैलत सर्वे 90% पाकिस्तानी मुल्क से जुड़े रहने का इजहार करते हैं। किसी जंग की सूरत में 96% अफराद मुल्क के लिए जान देने पर भी तैयार हैं। 70% पाकिस्तानी बैरून मुल्क अच्छे मौके मिलने के बावजूद भी पाकिस्तान छोड़ना नहीं चाहते। सर्वे में दूसरे नंबर पर फिनलैंड के 87% अवाम, कनाडा के 82% और जापान के 78% अवाम ने अपने मुल्क से जुड़े रहने का दावा किया। कानपुर में ज्यादती से बचने के लिए लड़की ने तेजाब पी लिया। तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक लड़की नौकरी के लिए पिज्जा शॉप पर गई थी। 2 लड़कियों समेत 5 मुल्जिमान का गिरोह मासूम लड़कियों से ज्यादती में मुलव्वस है। लड़की के बयान की रोशनी में मुल्जिमान की तलाश जारी। ओबाड़ू में नौजवान लड़कियों को मुलाजमत का झांसा देकर अगवा करने में मुलव्वस 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। सरगोधा की रिहायशी लड़की बाजियाब। पसंद की शादी करने वाली दुआ जहरा अपनी मर्जी से पंजाब गई थी। एवेलो रिपोर्ट में लड़की की उम्र 16 से 17 साल है। दुआ जहरा का कम उम्री में अगवा का जुर्म साबित नहीं होता। दुआ जहरा अगवा केस में पुलिस ने चालान कराची की अदालत में जमा करवा दिया। चालान के मुताबिक दुआ जहरा का निकाह पंजाब में हुआ। मुल्जिमान पर सिंध चाइल्ड एक्ट का इतलाक नहीं होता। लड़की अपना बयान सिंध हाईकोर्ट और इलाका मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड करवा चुकी। केस में गिरफ्तार गुलाम मुस्तफा और असगर बेगुनाह पाए गए। दोनों मुल्जिमान की रिहाई का हुक्म दिया जाए। दुआ जहरा को पंजाब के इलाके चिश्तिया से 5 जून को बाजियाब करवाया गया। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने भी घर गिराए जाने पर मुसलमानों की फरियाद न सुनी। स्टे ऑर्डर जारी करने से इनकार। गैर कानूनी तामीरात गिराने के लिए कानून पर अमल दरामद की हिदायत। जमीयत उलमा हिंद ने दरखास्त में कहा था कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के घर गिराए गए। डर और खौफ के माहौल में मुतासरीन बराह रास्त अदालत से रुजू करने के काबिल नहीं। साबिक जजेस, वकला समेत 12 शख्सियात ने भी भारतीय चीफ जस्टिस को खत लिख दिया। कहा, भारतीय हुकूमत का इकदाम गैर कानूनी है। यूपी हुकूमत मुजाहिरीन के खिलाफ तशद्दुद करके इख्तिलाफ राय को दबा रही है। शुमाल मशरकी बलूचिस्तान में कल शाम से प्री मानसून बारिशों का नया सिलसिला दाखिल होने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक जारत, जोब की हन्नाई, शिरानी में मुतवक्किल बारिश से सैलाबी सूरत हाल का खतरा है। जनूबी पंजाब और बालाई सिंध में गर्द आलूद हवाएं, आंधी चलने की तवक्को। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में मुसलधार बारिश, आंधी और झालाबारी। लोड शेडिंग में कमी पर हुकूमती रोड मैप पर अमल दरामद का इंतजार। मुख्तलिफ शहरों में 10 से 12 घंटों और देहात में 20 घंटों तक बिजली की बंदिश से अवाम बेहाल। बन्नू की वापदा कॉलोनी के मकीनों का मुजाहिरा। मानसेरा में भी गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। सड़क ब्लॉक कर दी। असिस्टेंट कमिश्नर की यकीन दहानी के बाद मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। रूस की यूक्रेन को अमन मुज़ाकरात की पेशकश। रूसी मुज़ाकरातकार का कहना है कि यूक्रेन की जानिब से रूसी तजवीज़ पर अभी तक कोई जवाब नहीं मिला। अमेरिका में शरह सूद में गैर मामूली इजाफा। मरकजी बैंक फेडरल रिजर्व ने 75 बेसिस पॉइंट बढ़ा दी, जो 30 बरस के दौरान सबसे ज्यादा इजाफा है। चेयरमैन फेडरल रिजर्व ने अगले माह भी शरह सूद में 0.75% इजाफे का इम्कान जाहिर कर दिया। बरतानिया में भी शरह सूद 1% से बढ़कर 1.25% हो गई।
दुनिया में पहली बार सोलर पैनल से चलने वाली गाड़ी सामने आ गई। डच कंपनी ने अपनी कई बरस पहले प्रोडक्शन शुरू कर देगी। सोलर पैनल गाड़ियों की छत पर नस्ब किया जाएगा। दमादम करंदल अलीदम दंदे अंदर हुसैनी लाल कलंदर हो लाल मेरी लाशपे हो अर्तखानी जुतोर माला लावला तादा तादा गुरु नद्रेसा और माला लावला लाशपे हो अर्तखानी जुतोर माला लावला तादा तादा गुरु नद्रेसा और माला लावला। जापानी डेप्यूटी काउंसिल जनरल को सिफारिशकारी के साथ उर्दू पर भी अबूर। गुलकारी के भी शौकीन, मसालेदार खाने भी खा लेते हैं। रशीदा कैतुनूरी बने जियो पाकिस्तान के मेहमान। कहा पाकिस्तान में ताल्लुकात बेहतर करने के लिए उर्दू बहुत जरूरी है। एलिजाबेथ की प्लाटिनम जुबली तकरीबात का मेला नन्हे शहजादे लुइस ने लूट लिया। मासूम हरकतें सबको भा गई। सोशल मीडिया पर सबके फेवरेट बन गए। शहजादे के वालिदैन प्रिंस विलियम और शहजादी केट ने कहा कि हम सब ने बेहतरीन वक्त गुजारा। खासकर प्रिंस लुइस ने तकरीबात में शिरकत करने पर लोगों का शुक्रिया भी अदा किया।